जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द बेसिक एंटाइटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फील्ड फोर्सेस। तो हमें पता चला था कि एक एंटाइटी हमारे पास मास है, किसी भी मटेरियल के पास मास होता है जिसकी वजह से वो फील्ड फोर्स अप्लाई करता है, एंड दैट फील्ड फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। Another entity which is responsible for the field force, that is known as charge. चार्ज की वजह से कोई भी मटेरियल जो फील्ड फोर्स अप्लाई करता है that is known as इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर हमारे पास दो मासेस हों तो उनके दरमियान हमने फील्ड फोर्स कैलकुलेट की। हमने कहा if two masses are separated by a distance r, then the field force between these two masses will be equal to gm1 m2 divided by r square, where r is distance between the masses and g is universal gravitation constant. This was calculated by Isaac Newton. तो इसी कैलकुलेशन को बेस बनाकर 1875 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट की एंड देन गिवन इट नेम एज कूलम्स लॉ। तो कूलम लॉ बेसिकली हमें क्या बताता है? तो कूलम लॉ बेसिकली हमें इस फील्ड फोर्स के बारे में बताता है कि हाउ मच इज फील्ड फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी भी जगह पे पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी फील्ड फोर्स होगी। जैसा कि हमने देखा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वाज ड्यू टू मास एंड इट आल्सो एक्सपीरियंस्ड बाय मास। Similarly, electric force is due to charge and also it is experienced by a charge particle. तो हमने कैलकुलेट की कि ये फोर्स कितनी होगी। तो चार्ल्स ऑक्सटन डी कूलम ने कहा कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, if you have 2 point charges which are separated by a distance, any distance, we say that it is r, then the force of attraction or repulsion, if both these charges are same, then there will be force of repulsion, and if the charges are different, then opposite, then there will be force of attraction. So the force of attraction or repulsion between the 2 point charges which are stationary is directly proportional to product of magnitude of charges. उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं जिनके दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, जिनको आपने सेपरेट करके रखा हुआ है और वो स्टेशनरी है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। यानी if we increase the magnitude of charges, then the force will increase, and if we decrease the magnitude of charges, the force will decrease. और उन्होंने साथ ये भी कहा कि this force is inversely proportional to square of the distance between the charges. और ये force जो होगी इस distance के square के inversely proportional होगी। यानी इस distance का square जितना increase करेंगे force decrease होगी, force कम होगी, और जितना इस डिस्टेंस का स्क्वायर कम करेंगे फोर्स इंक्रीज होगी। दैट वाज कूलम्स लॉ। तो लेट अस राइट द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। द फोर्स ऑफ
interaction that is attraction or repulsion between two stationary point charges. Is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between the charges. Between charges. This was first done by Charles Augustin de Coulomb. तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई भी दो चार्जेस हैं, let us consider we have any two stationary point charges, that is Q1 and Q2. These are any two point charges. Point charge is one which has very small dimension. These two charges are termed as point charges if the distance between these charges is much larger than the size of the charges. Then we can say that these two charges are point charges. Point means very small. So if we have two charges Q1 and Q2 which are separated by a distance r, then the force of interaction, that is F, is directly proportional to product of magnitude of charges, that is Q1, Q2. If we increase Q1, Q2, force will increase. Now, the second statement that was given by Augustin de Coulomb, that this force is inversely proportional to square of the distance. ये फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे ये फोर्स इंक्रीज हो जाएगी. बट एज वी नो दैट दिस चार्ज इज लाइक अ स्फीयर एंड स्फीयर हैज एरिया equal to 4 pi r square. That is, area of sphere depends upon square of the radius. Now if we increase the radius, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो फोर्स चारों तरफ कम हो जाएगी. That is r square. That is why we use r square, or it is also known as inverse square law. ये inverse square law भी कहलाता है. ठीक. Now combining these two, we get F is proportional to Q1 Q2 divided by R square. This expression tells us that if we increase this thing, force will increase. If we increase this thing, force will decrease. और हमारा मकसद ये नहीं है कि इसके ज़्यादा होने से ये ज़्यादा होगा, इसके ज़्यादा होने से ये कम होगा, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हाउ मच विल बी दिस फोर्स, ये फोर्स कितनी होगी. तो कितने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा चले जी Q1 को मैं
ले लेता हूँ 1, Q2 को भी मैं ले लेता हूँ 2 और R को भी मैं ले लेता हूँ 1. सॉरी, Q2 is also 1 and R is also 1. मैंने इन सब को 1 1 लिया. जब 1 1 पुट किया और फोर्स को कैलकुलेट किया तो देन द फोर्स इज इक्वल टू 9 into 10⁻⁹ न्यूटन. जब Q1 1 के इक्वल लिया, Q2 1 के इक्वल लिया और डिस्टेंस भी उनके दरमियान 1 ही रखा तो मैंने देखा फोर्स मेरे पास इक्वल आती है 9 into 10⁻⁹. तो मुझे पता चला there must be another thing which is essential and whose value is equal to 9 into 10⁻⁹. क्योंकि ये फोर्स Q1 की वजह से नहीं आई, Q2 की वजह से नहीं आई, R की वजह से नहीं आई, बल्कि इसकी वजह से नहीं आई. और ये मैंने 2 2 कर दिए, Q1 को मैंने 2 कर दिया, Q2 को भी 2 कर दिया और डिस्टेंस भी 2 कर दिया. अगेन मैंने कैलकुलेट किया तो फोर्स इज इक्वल टू 9 into 10⁻⁹. तो मैंने कहा इट मीन्स दैट दिस वैल्यू इज कांस्टेंट और ये कांस्टेंट हमने डिनोट किया K से. और इसका नाम रख दिया कूलम्स कांस्टेंट. तो इन दिस वे वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two stationary point charges. अब हमने देखा कि ये दो चार्जेस थे, इनके दरमियान फोर्स थी 9 into 10⁻⁹. Say these are at a distance of 1 magnitude, each have magnitude 1 and they are separated by a distance 1. Then the force between these two charges is 9 into 10⁻⁹ Newton. Now we place another thing between these two charges. For example, मैंने ये डस्टर बीच में रख दिया, फिर मैंने फोर्स कैलकुलेट की तो मैंने देखा फोर्स विल डिक्रीज, फोर्स डिक्रीज हो गई है. तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि ये मटेरियल जब मैंने रखा तो इसने फोर्स को डिक्रीज कर दिया, इसने फोर्स को डिक्रीज कर दिया. तो इसका मतलब है कि फोर्स इस मीडियम ने ना Q1 को अफेक्ट किया, ना Q2 को, ना ही R को. डिस्टेंस भी वही है, चार्जेस भी वही है, तो फिर इसने किसको अफेक्ट किया? तो मैंने कहा इसका मतलब है इस मीडियम में ये जो चीज मैंने रखी है इसने K को अफेक्ट किया. इट अफेक्ट्स द K बिकॉज द वैल्यू ऑफ K विल डिक्रीज. तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट जो था ये हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं था. तो हमने कहा दिस कांस्टेंट इज मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट. अब हमने कहा व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस, व्हेन देयर इज फ्री स्पेस आर देयर बिटवीन दीज टू चार्जेस, क्योंकि हमारे ज्यादातर एक्सपेरिमेंट फ्री स्पेस के एरिया में होते हैं. तो मैंने उस वक्त कैलकुलेट किया तो फोर्स इज इक्वल टू 9 into 10⁻⁹ न्यूटन थी. अब मैंने कहा व्हाट इज द फैक्टर ऑफ ए मीडियम that affect K between these two charges. वो कौन सा फैक्टर है जो इस कांस्टेंट को अफेक्ट करता है? तो मैंने कहा कि हर मीडियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो इस K को अफेक्ट करती है दैट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. Permittivity. तो व्हाट इज परमिटिविटी? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये दो चार्जेस हैं और ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर 100 लाइनें बेचकर इसको खींच रहा है या रिपेल कर रहा है. मैंने जो ही मीडियम रखा तो 100 लाइनों में से 60 इसने ब्लॉक कर दी, 60 इसने ब्लॉक कर दी और 40 को जाने दिया. तो जितनी इसने ब्लॉक कर दी दैट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम.
यानी मैंने कहा 60 ब्लॉक कर दी तो परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज 60, जाने वाली परमिटिविटी नहीं है, सिर्फ वो लाइनें जिनको इसने ब्लॉक कर दिया, दैट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी बेसिकली परमिट से निकला है, परमिशन से निकला है, यानी दिस मीडियम परमिट इटसेल्फ, इसने अपने आप को इजाजत दी दैट टू एब्जॉर्ब द 60 लाइन्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम दिस चार्ज टू दिस चार्ज। इसने कहा कि 60 लाइनों को एब्जॉर्ब कर लो और 40 को जाने दो। तो जितनी इसने एब्जॉर्ब कर दी उतनी ही इसकी परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी इज द एबिलिटी of a medium due to which it affects electric force between the two charges. That is permittivity. Now, when there is no medium between the charges, the permittivity is known as permittivity of free space, and it is denoted by a letter epsilon naught. Naught means nothing. So permittivity of nothing means के फ्री स्पेस की परमिटिविटी। और हमने जब चार्जेस को रख के हमने देखा कि ये परमिटिविटी कितनी है, तो इट कम्स आउट टू बी 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमने देखा कि इतनी परमिटिविटी है, हमने दो चार्जेस को रखा तो उनके दरमियान इतनी फोर्स इफेक्ट होती है व्हेन देयर इज नो मीडियम। और हमने कहा कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, दिस इज अ चार्ज एंड दिस चार्ज इज लाइक अ स्फीयर एंड वी नो दैट स्फीयर हैज सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई। स्फीयर का सॉलिड एंगल 4 पाई है। सो हाउ मेनी लाइन्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस चार्ज? So 4 pi lines coming out from this charge, and the opposition offered by the free space to all these lines is equal to 4 pi epsilon naught. ये मीडियम फ्री स्पेस इन सारी लाइन को इतनी अपोजिशन देगा। अब ये दो चार्जेस जब हमने रखे और एक लाइन यहां से इधर जा रही है, बाकी लाइनें ऐसी जा रही है, इस चार्ज की तरफ सिर्फ एक ही लाइन जा रही है। नाउ हाउ मच इज अपोजिशन टू दिस लाइन? तो टोटल अपोजिशन टू ऑल द लाइंस इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught. Opposition to this line is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. That is why we use K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. So now Coulomb's law becomes, तो Coulomb law हमारे पास हो जाएगा F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. This is mathematical form of Coulomb's law. ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है if we place any other material other than air or free space between the charges, how much this force is affected. तो हमने कोई भी मटेरियल मीडियम रखा, Coulomb's law in material medium. So when we place any material medium between the charges,
This is not affected, this is not affected, this is not affected, even this is also constant. Only this factor is changed. That is, this force becomes F prime is equal to 1 by 4 pi epsilon n Q1 Q2 divided by R square. तो हमारे पास ये फोर्स बन गई 1 by 4 pi epsilon m, where epsilon m is permittivity of the medium. But it is very difficult for us. ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था कि हम इस तरह याद करें 8.85 मीटर स्क्वायर माइनस 12 कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर. दिस इज वेरी डिफिकल्ट. तो हमने इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए एक ऐसा कांस्टेंट बनाया विच इज डायमेंशनलेस. उसके लिए हमें ये सारा कुछ याद ना करना पड़े. हमने कहा इस एक को याद कर दें, बाकी को उसके साथ रिलेशन बना के बना देते हैं. तो हमने एक कांस्टेंट बनाया विच कांस्टेंट इज नोन एज relative permittivity. तो हमने कहा relative permittivity is the permittivity of the medium in a relation to permittivity of free space. That is called relative permittivity. हमने कहा अब हम relative permittivity को याद रखेंगे. हमें हर एक मीडियम की permittivity याद रखने की जरूरत नहीं है. इस तरह हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी कि हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वजह से फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे 9 × 10⁹ की वैल्यू पुट करके, और उसको फिर relative permittivity से डिवाइड कर देंगे and we will get the force between the charges. तो हमारे पास permittivity of the medium आ गई. Permittivity of the medium is equal to epsilon naught epsilon r. Now using this value in this equation, using NA, we will get F prime is equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r Q1 Q2 divided by R square. यहाँ पे epsilon naught and epsilon r are used instead of epsilon n. हमने epsilon n की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी. Now we can write it as that F prime is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square into 1 by epsilon r. हमने इस 1 by epsilon r को इरेक्ट करके लिख दिया. अब इस इक्वेशन को देखें, इस चीज को देखें और इस इक्वेशन को देखें. These both are same. So we can write it as F prime is equal to F into 1 by epsilon r. Or we can write it as F prime is equal to F divided by epsilon r. अब जरा एप्सिलॉन आर को देख लें. मैं कहता हूं कि एप्सिलॉन आर हम कैलकुलेट कर देते हैं फॉर फ्री स्पेस. तो मैं कहता हूं मेरे पास मीडियम भी फ्री स्पेस हो और एप्सिलॉन आर को फॉर फ्री स्पेस होती है आल्सो. तो उस वक्त एप्सिलॉन आर हमारे पास कितनी आ जाएगी? तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम की जगह पे हम एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट, and this comes out to be 1 with no unit, with no powers of 10. It is very simple. तो अब मेरे लिए 1 2 3 4 5 6 7 ये याद रखना इजी है, बजाय इसके कि मैं 10 की पावर याद रखता रहूं या यूनिट याद रखता रहूं. तो इस तरह अब मुझे पता चल गया कि जो सबसे कम नेगेटिव परमिटिविटी है दैट इज 2.
दैट इज 1 एंड दैट इज फॉर फ्री स्पेस। बाकी जितने भी मटेरियल मीडियम आएंगे उनकी परमिटिविटी 1 से ग्रेटर, 2, 3, 4। अब हमें कोई कहता है कि मैंने 2 चार्जेस रखे हैं और उनके दरमियान एक ऐसा मीडियम रखा जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी थी 3। हाउ मच विल बी द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट करें। तो हम इस फार्मूले से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², ये फोर्स कैलकुलेट कर देंगे। K की वैल्यू हमारे लिए इजी है, 9 × 10⁹, नो डेसिमल, नो कॉम्प्लिकेशन। तो इससे हम इजीली कैलकुलेट कर देंगे और उस फोर्स को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे लिए उस मीडियम की फोर्स आ जाएगी। तो दैट्स ऑल। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्ब का, कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब लॉ कैसे अप्लाई होता है। थैंक यू।